अहम खबर आपको दें, अल अजीजिया और एवेंट फील्ड रेफरेंस पर नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। बेंच जस्टिस आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल है। अपीलें खारिज होने के बाद नवाज शरीफ की सजाएं बहाल हो गई हैं। और इस हवाले से जो फैसला है उसके निकात आपके साथ शेयर करें कि इन व्यू ऑफ अबव पोजीशन ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिस 2 courses आर अवेलेबल टू दिस कोर्ट, either to dismiss the appeal outrightly as was the case in judgment reported as Hayat Baksh and others versus the state, or follow the dictum laid down in case reported as Ikramullah and others versus the state. It is pertinent to point out that the decision rendered by the Apex Court in case reported as PLD 1981 Supreme Court 265 Sapra was by a 5-member bench, whereas the decision handed down in case reported as 2015 is by a 3-member bench. Hence, former decision still holds the field and is binding despite being earlier in time. So, reliance is placed on cases reported as Chaudhry Muhammad Salim versus Fazal Ahmad and 2 others. जबकि ये भी बताया गया है कि even otherwise there is little or no difference cases reported as PLD 1981 cases 2015 ये भी बताया गया है as much as in the later case an observation was made specifically providing option to the appellant for resurrection of appeal while dismissing the same, whereas similar views were expressed in case reported as PLD 1981 Supreme Court 265, and while concluding the matter it was stated that absconder before hearing of the appeals of the co-convicts can appear and make application for hearing case on merits. यानी कि जो कि मफरूर हैं, जो फरार हैं, वो अदालत में आ सकते हैं और फिर उनके केस पर मजीद कार्रवाई हो सकती है. The same would be fixed before fixation of appeals of co-convicts. Much emphasis was laid on Article 10A of the Constitution by Mr. Hassan Nawaz Makhdoom is a must in every case. In this behalf, Article 10A, एक बार फिर 10A का हवाला दिया गया है, of the Constitution provides for the determination of civil rights and obligation or in any criminal charges against him, a person shall be entitled to fair trial and due process. यानी due process और fair trial का तकाजा है और आईने पाकिस्तान की तरफ से ये हक दिया गया है आर्टिकल 10A का. In case reported as Hayat Baksh Sapra, the Honorable Supreme Court observed that there is no bar on the Supreme Court to dispose of a criminal appeal on consideration that the accused person has abused the process of the court. So Supreme Court पर ऐसी कोई कदगन नहीं है कि वो जो मुजरिम है, जो मफरूर है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी प्रोसेस में शरीक नहीं होता है तो उसके हवाले से वो कोई फैसला देने से कासिर है. इस बात का हवाला दिया गया है. इट वॉज ऑल्सो स्टेटेड दैट देयर इज़ नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन or the rules to compel the court to decide on merits an appeal filed by an accused person who has chosen to be fugitive from justice and while remaining so decided to disobey or frustrate the order. So ये कहा गया है कि अदालत पे ऐसे शख्स का कोई हक नहीं बनता कि वो अदालत को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या ऐसी अपील वो चाहे कि वो उसके हक में फ़ैसला आ जाए जिसमें वो खुद इश्तिहारी है और अदालती प्रोसेस को वो का हिस्सा नहीं बन रहा है. तो वो इश्तिहारी है तो ज़ाहिर है उनके केस को, उनकी अपील को इस हवाले से नहीं सुना जा सकता. कानूनी तकाजा ये है कि मुल्क में वापस आते हैं, अपने केस के हवाले से दरख्वास्त दायर करते हैं तो फिर उनको इसका हक मिल सकता है कि उनकी अपील सुनी जा सकती है. Appellant was provided fair trial and now has absconded from justice at the time of hearing of appeal. Hence, the referred article of Constitution is of no avail to him. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि अदालत के ही फैसले के बाद बाहर गए थे, अब वो मफरूर हैं, चाहते हैं कि उनकी जो अपील है वो खारिज कर दी जाए, जो उनको सज़ा दी गई है वो मुअत्तल कर दी जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता. साथ में ये भी कहा गया है कि एज लर्नेड ट्रायल कोर्ट प्रोवाइडेड हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एज वेल एज क्रॉस एग्जामिनिंग the prosecution witness, and only after the proper trial his conviction was recorded. He, despite being on bail, proceeded abroad and did not appear before this court, and without any justification or the basis remained absent on a number of dates of hearing. Hence, this court was left with no option but to follow the procedure as provided in Code of Criminal Procedure 1898 and declare him as fugitive from law. यानी एक बार फिर अदालत ने ये कहा कि बावजूद इसके
कि कोई ऐसी तौजी पेश नहीं की गई, कोई ऐसे सबूत फराम नहीं किए गए कि वो अदालत से क्यों एब्सेंट हैं। और जैसे कि सबको मालूम है कि वो गए तो इलाज की गर्ज से थे, लेकिन अदालत भी इस हवाले से कोई क्लू नहीं रखती कि नवाज शरीफ जो है वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया है। तो अदालत ने ये कहा कि किसी तरीके से हमें बताया नहीं गया है, तो अदालत ये राइट रखती है और एक बार फिर उन्हें फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया गया है कानून की रोशनी में। इन व्यू ऑफ फॉरगोइंग, सिंस एप्लेंट इज फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ, हेंस हैज लॉस्ट हिज राइट ऑफ ऑडियंस बिफोर दिस कोर्ट। तो यानी कि अब वो अपना वो हक नहीं रखते कि उनको सुना जा सके अदालत में, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं। एंड वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस एक्सेप्ट टू डिसमिस हिज अपील। और कानूनी तौर पे हमारे पास भी अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम उनकी अपीलों को खारिज कर दें। For the above reasons, instant appeal is dismissed. Appellant may file an application before the court, and as then when he surrenders or is captured by the authorities for decision of the appeal on merits, needless to observe that the said application, if and when is made, shall be decided in accordance with law. तो अगर वो वापस आ जाते हैं तो उनकी दरख्वास्त को सुना जा सकता है, लेकिन वो मफरूर है इसलिए उनकी दरख्वास्त को नहीं सुना जा सकता। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।